Hello, my name is Mohammad Akhlad. Today's I cover the fundamental unit of life in one shot. Hi बच्चों, कैसे आप सब? चलो स्टार्ट करते हैं. The cell was discovered and named by Robert Hooke in 1665. Introduction of cell. Cell are the structural, functional and biological unit of all living thing. The entire functioning of living organism begins from basic unit called cell. That is why it is fundamental unit of life. A cell can replicate itself independently, hence they are known as building blocks of life. सेल का मतलब कोशिका होता है. इसकी खोज और नाम रॉबर्ट हुक ने 1665 में दिया. इंट्रोडक्शन ऑफ सेल. सेल हमारे बॉडी के ढांचे बनाने में, फंक्शन करने में और जीवन जीने में सहायक है. ये हमारे बॉडी के अंदर कई फंक्शन करता है और ये खुद डिवाइड करता है और नया सेल फॉर्म करता है. इस प्रोसेस को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कहते हैं. Cell theory. Cell theory was proposed by Schleiden and Schwann in 1838. 1839. All the living organisms are composed of cells. The living organism could be made up of one or more cells. The new cells arise from pre-existing cells through the process of cell division. Cell theory. Cell theory को Schleiden and Schwann 1839 में दिया. लिविंग ऑर्गेनिज्म एक और एक से ज़्यादा सेल से बनता है और न्यू सेल बनाता है पुराने सेल से. इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं. कंपोनेंट ऑफ सेल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, outermost covering of the cell and it separates cell from external environment. Selectively permeable membrane. Allow entry and exit of some materials. Prevent movement of some materials. Allowed diffusion of substances like carbon dioxide and oxygen. Regulates movement of substances in and out of the cell. It is made up of lipid and protein. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन ये बाहरी कवरिंग होती है और ये सेपरेट करता बाहरी एनवायरनमेंट से. ये कुछ मटेरियल को अंदर और बाहर करता है. इसमें सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है जो अंदर और बाहर करता है और ये रोकता कुछ मटेरियल को. ये डिफ्यूजन करता कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का. ये बढ़ाता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अंदर और बाहर करने में. ये बनाता है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को. एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. Active transport substances move from their lower to higher concentration. It requires energy in the form of ATP molecules. It is a rapid movement. Movement of large molecules by active transport. Active transport substance move करता है कम से ज़्यादा concentration में. इसको energy चाहिए in the form of ATP. ये फास्ट प्रोसेस होता है. इसमें बड़े मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है. पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम देयर हायर टू लोअर कंसंट्रेशन. नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इट इज अ स्लोली मूवमेंट. ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड पैसिवली. पैसिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस मूव करता है ज़्यादा से कम कंसंट्रेशन में. इसमें एनर्जी नहीं लगता है. ये बहुत धीरे प्रोसेस होता है. केवल छोटा मॉलिक्यूल और वाटर ट्रांसपोर्ट होता है. ऑस्मोसिस. द पैसेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. ऑस्मोसिस ये मूवमेंट है वाटर मॉलिक्यूल का ज़्यादा से कम कॉन्सेंट्रेशन में अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस. Endosmosis, the process in which the water molecules solvent enter into the cell swell. Exosmosis, the process in which the water molecules solvent move out of the cell shrink. Types of osmosis. Endosmosis, water molecule solvent अंदर जाता है तो सेल फूलता है.
एक्सोस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट बाहर जाता है तो सेल पिचक जाता है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन: hypertonic, higher solute outside, higher water inside, water moves out, cell shrinks. Isotonic, equal solute, equal water, no net movement, normal. Hypertonic, higher solute inside, higher water outside, water moves in, cell swells. Types of solution: hypertonic, high solute बाहर, high water अंदर, water बाहर निकालता है, leaves से सेल पिचकता है। Isotonic, equal solute, equal water, कोई movement नहीं। Hypertonic, high solute अंदर, high water बाहर, water moves, सेल फूलता है। Cell wall: non-living rigid outer covering of plant cell composed mainly of cellulose. Provides structural strength, lies outside the plasma membrane. Non-living rigid बाहरी कवरिंग ऑफ प्लांट सेल ये बना होता है सेल्यूलोज का। ये बाहरी स्ट्रक्चर को मजबूती देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। Plasmolysis: it occur in living plant cell when they lose water through osmosis. Result in linkage of cell content away from the cell wall. ये लिविंग प्लांट सेल जब वो वाटर लूज करता ऑस्मोसिस से तो लिंकेज ऑफ द सेल कंटेंट अवे फ्रॉम द सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल: इट परमिट प्लांट फंगी एंड बैक्टीरियल सेल टू रेजिस्ट बर्स्टिंग इन hypertonic environment. Cells absorb water by osmosis leading to swelling and pressure against cell wall. Cell wall exert equal pressure against swollen cell. Cells withals can endure greater changes in surrounding medium than animal cell. Function of cell wall: ये परमिट करता है प्लांट फंगी एंड बैक्टीरियल सेल को और रोकता है फिटने से हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में। सेल वाटर अब्सॉर्ब करता है बाय ऑस्मोसिस और फूलता है, टैप प्रेशर लगता है सेल वॉल पे। सेल वॉल सभी जगह इक्वल प्रेशर लगाता है अगेंस्ट स्वोलन सेल। सेल वॉल के साथ बहुत दबा होता है, ये बड़ा चेंज सराउंडिंग का एनिमल सेल में। Endocytosis: when food material and water enter in the cell wall, this process is called endocytosis. Exocytosis: when waste material spill from the cell wall, this process is called exocytosis. एंडोसाइटोसिस: जब खाना और वाटर अंदर जाता सेल वॉल के तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक्सोसाइटोसिस: जब वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है सेल वॉल तो से एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। न्यूक्लियस: द न्यूक्लियस was discovered by Robert Brown 1831. The nuclear membrane is double-layered and contain pores for material exchange between the nucleus and cytoplasm. Nucleus contain chromosome, DNA and protein visible during cell division which carry genetic information in the form of DNA molecules. DNA deoxyribose nucleic acid molecules contain the information essential for constructing and organizing cells. These molecules consist of genes which regulate cell function and inheritance and are visible chromatin material in non-dividing cells. Nucleus: न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की in 1831. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डबल लेयर्ड होता है और इसके पास पॉज फॉर मटेरियल एक्सचेंज बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के पास क्रोमोसोम, डीएनए एंड प्रोटीन होता है जो दिखता सेल डिवीजन में, जो कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल के पास एसेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जो कंस्ट्रक्ट्स करता है ऑर्गेनाइजिंग सेल को। ये सेल फंक्शन और इनहेरिटेंस को रेगुलेट करता है। .is में क्रोमेटिन मटेरियल दिखता है नॉन डिवाइडिंग सेल में। क्रोमेटिन मटेरियल: इट इज अ विजिबल एज एन एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड-like structure, undergoes organization into chromosomes during cell division. The nucleus play a vital role in cellular reproduction and development, chemical activities and determining cell maturity.
क्रोमेटिन मटेरियल ये दिखने में उलझा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन इनटू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन। न्यूक्लियस का वाइटल रोल होता है इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, केमिकल एक्टिविटीज में और सेल मैच्योरिटी को बताती है। टाइप्स ऑफ सेल प्रोकैरियोटिक सेल their size is generally small. Nuclear region is not well defined and it is known as nucleoid. Single chromosome cell membrane bounded and organelles are absent. Prokaryotic cell ये साइज में स्मॉल होता है, न्यूक्लियर रीजन इज स्कैटर और इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। एक क्रोमोजोम होता है, सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड और ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। Eukaryotes cell their size is generally large. Nuclear region is well defined as well as it's surrounded by a nuclear membrane. More than one chromosome cell is well defined membrane bound organelles are present. यूकैरियोट सेल इसकी साइज बड़ी होती है, न्यूक्लियर रीजन इस साफ होता है और वो सराउंड होता न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एक से ज्यादा क्रोमोसोम सेल साफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है। साइटोप्लाज्म द फ्लूइड कंटेंट enclosed by the cell membrane contains specialized organelles. Organelles perform specific function and are enclosed by membrane. साइटोप्लाज्म ये लिक्विड कंटेंट होता है जो कि enclosed रहता है सेल मेम्ब्रेन के और होता स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल्स। ये ऑर्गेनेल्स खास तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। Cell organelles eukaryotic cells contain various membrane-bound organelles that carry various function in the cell X nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes etc. Cell organelles जो यूकैरियोट्स होता है उनके बहुत membrane bound organelles और वो बहुत सारे फंक्शन करते हैं। Ribosome membrane-less cell organelle involved in synthesis of protein. Present in both prokaryotic and eukaryotic cell, ribosome. इसमें membrane नहीं होता सेल ऑर्गेनेल ये प्रोटीन बनाती है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। Endoplasmic reticulum The endoplasmic reticulum forms a network of membrane-bound tubes and sheaths within the wall. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नेटवर्क बनाता है किसके साथ, मेम्ब्रेन बाउंड एंड शीट ये सब सेल वॉल के अंदर होता है। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपीयर्स रफ ड्यू टू राइबोसोम साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम synthesize proteins not involved in lipid production. No role in enzyme or hormone synthesis. No role in detoxification. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम ये रफ दिखता है क्योंकि राइबोसोम साइट पर प्रोटीन बनता है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ये लिपिड नहीं बनाता है। ये हार्मोन एंजाइम नहीं बनाता है, ये डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर पाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम Smooth appearance facilitates lipid, enzyme and hormone production. No protein synthesis function in lipid production facilitates lipid synthesis. Function in enzyme and hormone production crucial in detoxification especially in liver cell. Smooth endoplasmic reticulum ये lipid enzyme और hormone बनाता है। ये प्रोटीन नहीं बनाता बल्कि ये लिपिड बनाता है, ये फैसिलिटेट्स लाइपिड सिंथेसिस। ये फंक्शन करते हैं एंजाइम एंड हार्मोन बनाने में। ये लिवर सेल की सफाई करता है, गोल्जी apparatus. Named after its discovered Camillo Golgi. It comprises a system of membrane-bound vesicles arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisterns. Facilitates the packaging and transportation of protein across the cytoplasm. Performs functions such as storage, modification and packaging of production vesicles. Play a role in the formation of lysosome, Golgi apparatus.
इसका नाम और खाउच कमिलो गोल्जी ने कि ये सिस्टम है मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल का जो कि रफली अरेंज्ड है पैरेलल टू ईच अदर इन स्टॉक को सिस्टेंस कहते हैं। ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन साइटोप्लाज्म के अक्रॉस करता है। ये स्टोरेज मॉडिफिकेशन पैकेजिंग करता है प्रोडक्शन ऑफ वेसिकल की। ये लाइसोसोम बनाता है लाइसोसोम। Lysosomes, filled with digestive enzyme from the RER, act as the cell waste disposal system. They digest foreign material and worn out organelles to maintain cell cleanliness. Lysosome break down complex substance into simpler ones using powerful enzymes, termed suicide bags, as they may burst during cellular disturbance, leading to self-digestion. Involved in breaking down all organic material, including bacteria and old organelles. Lysosome. ये फिल रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम से फ्रॉम RER। ये एक्ट करता वेस्ट को डिस्पोज करने में। ये डाइजेस्ट करता है फॉरेन मटेरियल को और ये खाता है ऑर्गेनेल्स को सफाई के लिए। ये ब्रेक करता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में पावरफुल एंजाइम की मदद से। इसे सुसाइड बैग कहते हैं क्योंकि ये जब फैट जाता है तो सेल्यूलर डिस्टर्बेंस की वजह से सेल्फ डाइजेशन करता है। ये ब्रेक करता है सारे ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे बैक्टीरिया और पुराने ऑर्गेनेल्स। वैक्यूल्स। वैक्यूल स्टोरेज सैक्स इन सेल्स, small in animals, large in plants. Plant central vacuole occupies 50 to 90% of cell volume filled with cell gap. Functions: provide turgidity and rigidity to plant cells, store essential substances. Content: amino acids, sugars, proteins, and in single-celled organisms, consumed food items. Specialized role: expelling excess water and wastes from unicellular organism. Vacuoles ये स्टोरेज सैक्स सेल, ये छोटा एनिमल में और बड़ा प्लांट में पाया जाता है। प्लांट सेंट्रल वैक्यूल ये 50-90% सेल गैप का भरा होता है। फंक्शन: ये फूलता है, रिजिड बनाता है टू स्टोर एसेंशियल सब्सटेंस। कंटेंट: ये अमीनो एसिड शुगर प्रोटीन बनाता है जिसके पास एक सेल होता है और ये फूड आइटम कंज्यूम्ड करता है। स्पेशलाइज्ड रोल: ये वाटर और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, the cell's powerhouse, has two membrane porous outer and folded inner. Inner folds increases surface area or ATP generation, the cell's energy currency. Mitochondria produce ATP used in cellular activities and mechanical work. They possess their own DNA and ribosome enabling protein synthesis. माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस है, इसके पास डबल मेम्ब्रेन बाहर पोरस और अंदर फोल्डेड। अंडर फोल्डेड मेम्ब्रेन है, ये इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को और एटीपी जनरेशन में यही को एनर्जी करेंसी कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता एटीपी सेल्यूलर एक्टिविटीज और मैकेनिकल वर्क के लिए। इसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल्स exist in two varieties, chromoplast and leucoplasts. प्लास्टिड्स ये एक्सक्लूसिव प्लांट सेल है, ये दो टाइप के होते, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड: क्रोमोप्लास्ट, दे आर कलर्ड प्लास्टिड, फ्लावर। क्रोमोप्लास्ट ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं जैसे फूल। Chloroplast, they are chromoplasts containing chlorophyll enabling photosynthesis, which regulate atmospheric oxygen level. Chloroplast ये chromoplast होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रेगुलेट करते हैं।
Leucoplast lack coloration and primarily function as storage site for starch, oils, and protein granules. ल्यूकोप्लास्ट इसके पास कोई कलर नहीं होता और स्टोरेज करता स्टार्च ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. Cell division is the process through which new cells are formed from parent cell in organisms. New cell formed for growth, cell replacement and reproduction. Cell division ये एक प्रोसेस है जिसमें नया सेल बनता है पेरेंट सेल से. ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है. नया सेल बनता है ग्रोथ पुराने डेड सेल को रिप्लेस करने में और रिप्रोडक्शन में. टाइप्स ऑफ सेल डिविजन. माइटोसिस, इट इज एन इक्वेटोरियल डिविजन. Two daughter cell are formed. Daughter cells have same number of chromosomes as the parent cell. It help in growth and repair of injured tissue. Types of cell division. माइटोसिस ये इक्वेटोरियल डिवीजन है जिसमें दो डॉटर सेल बनता है. जो दो डॉटर सेल बने उनके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जैसा कि पेरेंट में था. ये हेल्प करता ग्रोथ और टिश्यू को रिपेयर करने में. मायोसिस, इट इज अ रिडक्शनल डिवीजन. फोर डॉटर सेल आर फॉर्म्ड. डॉटर सेल हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गेमीट. मायोसिस ये रिडक्शनल डिवीजन है. चार डॉटर सेल जिनके पास हाफ नो ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जैसा कि पेरेंट में होते हैं और रिस्पॉन्सिबल फॉर गेमीट बनाने में.